ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اس قدر برکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ اور قرآن مجید کے فیضان کے کیا کہنے، ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن سن کے تے مردے زندہ ہو جاندے نے، عذاب اٹھ جاندے نے، تے ایتھے بندہ مومن ہوئے حضور دا امتی ماہ رمضان بھی ہوئے تے پھر منہ چوں کی نہ نکلے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، اور فرمایا یہ صرف نصیحت ہی نہیں ہے، شفاء لما فی الصدور، فرمایا دلوں کی صحت بھی اس قرآن میں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی میں دل کا مریض ہوں، مجھے شفا نہیں مل رہی۔ میں نے کہا تو نے قرآن سے دوری کی، تجھے دل کی مرض لگ گئی، میرا رب تو کہتا ہے شفاء لما فی الصدور، فرمایا یہ قرآن اس میں نصیحت بھی ہے اور دلوں کی صحت بھی ہے۔ اگر دل کی صحت لینا چاہتے ہو تو اللہ کا قرآن پڑھنا ہوگا۔ آقا کے دیوانوں، آگے فرمایا اس کے اندر ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایمان شرط ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جس دور میں قرآن نازل ہوا اور اس دور میں عرب کے لوگ اقلیم کلام و سخن کے بادشاہ تھے اور وہ فصاحت و بلاغت کے میدان کے شاہ سوار تھے، لیکن جب قرآن اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اپنے محبوب پہ ایک ایسی جامع اور کامل کتاب کو نازل فرمایا، تو وہ حضور کے سامنے آتے ہیں، وہ فصاحت و بلاغت کے بادشاہ، وہ فصاحت و بلاغت کے شاہ سوار میرے آقا کے سامنے جب آتے ہیں تو میرے امام نے ایسے بیان کیا، تیرے آگے یوں ہیں دبے نچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ تواڈے جسم میں تے جان ہے نا، تے پھر محبت نال کہہ لو۔ فرمایا حضور کے سامنے آنے سے پہلے بڑی پلاننگیں کرتے، ہم یہ بات کریں گے، ہم اس انداز میں جواب دیں گے، لیکن میرے محبوب کے سامنے جب آتے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے منہ میں زبان ہی نہیں، منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہی، ایسے لاجواب کر کے رکھ دیا۔ یہ ایسا معجزہ قرآن ہے۔ اور اس کے بارے میں حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فصحائے عرب کے اندر شمار کیے جاتے تھے، عرب کے بہت بڑے فصیح تھے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، میرے حضور نماز فجر کے اندر سورۃ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ کیسا سہانا منظر ہوگا جب صاحب قرآن حالت نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ آقا کے دیوانوں، امام الانبیاء کے غلاموں، بات توجہ طلب ہے، جب انہوں نے صاحب قرآن کی زبان سے قرآن کو سنا، دل پہ اثر ہوا، اور پھر ہوا کیا، بغور سنتے رہے، جب اس آیت کو میرے آقا نے تلاوت فرمایا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ فرمایا بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے اور اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ جب یہ آیت سنی اور پھر ہوا کیا،
کہتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے عذاب میری طرف آ رہا ہے، اور فرماتے ہیں اس عذاب کے خوف سے میرے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آقا کے دیوانوں، امام الانبیاء کے غلاموں، توجہ طلب بات ہے، کہتے ہیں اس عذاب کے خوف سے میں لرز گیا، میرا بال کھڑا ہو گیا، اور قرآن کی عظمت کو میں نے دل سے پہچان لیا اور سرکار کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آقا کے دیوانوں، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ قرآن کی عظمت کے کیا کہنے، قرآن کو اللہ رب العزت نے ماہ رمضان میں نازل فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن مجید کی ہر سورت شان والی ہے، ہر آیت شان والی ہے۔ پورے قرآن کی عظمت بیان سے قاصر ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، فرمایا اگر میں فقط سورت فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ لد جائیں گے۔ آقا کے دیوانوں، حضرت خواجہ خواجگان، میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان الہند عطا رسول حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک نبینہ شخص گیا اور جا کر اپنے نبینہ ہونے کی شکایت کی۔ اس بزرگ نے کیا سورت فاتحہ کو پڑھا اور پڑھ کے قرآن اس نبینہ کی آنکھوں سے مس کیا۔ پہلے نبینہ ہے، اب سورت فاتحہ پڑھی، قرآن لگایا آنکھوں کے ساتھ، تو وہ نبینہ بینا ہو جاتا ہے۔ آقا کے دیوانوں، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میرے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، فرمایا ایک شخص گناہگار تھا، فاسق و فاجر تھا، بدکار تھا، بدکاری میں زندگی بسر کی اور فوت ہو جاتا ہے۔ جب مر جاتا ہے تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا تھا تو میں گناہگار، لیکن رب نے مجھ پہ رحمت کی، مجھے بخش دیا ہے۔ پوچھا کیوں؟ وجہ کیا ہوئی؟ سبب کیا بنا؟ رحمت خداوندی کا۔ رحمت حق بہانمی جوید، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ آقا کے دیوانوں، اس نے بتایا میرا معاملہ بڑا خراب تھا، میں گناہگار تھا، میں فاسق و فاجر تھا، میں بدکار تھا، ساری زندگی میں نے ایسے گزاری، لیکن یاد رکھو ایک عمل میرے پلے میں تھا۔ کہا کون سا عمل تھا تیرے پلے میں؟ کہنے لگا میرے پلے میں ادب قرآن کا عمل تھا۔ کیا؟ فرمایا کیسے عمل کرتا تھا؟ کہا کہ میں ادب قرآن کیسے کرتا تھا کہ جب بھی قرآن کو لایا جاتا تو میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور میں ادب سے قرآن کی طرف دیکھتا تھا۔ بس یہی عمل تھا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ آقا کے دیوانوں، قرآن کی عظمت کے کیا کہنے، قرآن کی رفت کے کیا کہنے، یہ فقط ادب قرآن کا ثمر ہے کہ رب نے اس کو بخش دیا۔ سلطان محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا بڑا شورا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ ایک دن، اور یہ بھی بات جو ہے وہ دلیل العارفین کے اندر مذکور ہے، کہتا ہے کہ ایک دن میں سونے کے لیے اپنے گھر آیا، کمرے میں پہنچا اور وہاں میں نے دیکھا کہ طاق میں قرآن پڑا ہے۔ آج ہم ٹی وی رکھنے کے لیے
15-20 हजार की ट्राली तो लेते हैं, लेकिन कुरान रखने के लिए क्या हमने खूबसूरत अलमारी का इंतखाब किया? नहीं है। हमारे घरों में कुरान पढ़े, उन पे गर्द पड़ गई और हुआ क्या, हमारी किस्मत जो है उसको गर्द लग गई, हमारे दिलों पे गर्द चढ़ गई, हमारी आंखों पे हिजाब और पर्दे चढ़ के रह गए। अगर हमें कुरान से प्यार होता तो टीवी ट्राली बाद में आती, पहले तेरे घर में खूबसूरत जीनत वाली अलमारी रखी जाती और उसमें आला शान के साथ कुरान को रखा जाता। आज देखो कितने घर हैं जिनमें कई दिनों से कुरान को खोला नहीं गया, कुरान को पढ़ा नहीं गया, गर्द पड़ी है कुरान के गिलाफ पर। आका के दीवानों, हम जब कहते हैं मालिक मेरा हाल देख, आगे से जवाब आता है बंदे पहले अपना नामा माल तो देख। आका के दीवानों, गौर करने की जरूरत है। सुल्तान महमूद गजनवी कामल सुनेंगे, ईमान ताजा होगा, दिल को जिला मिलेगी। सुल्तान महमूद गजनवी कहते हैं मैं घर में आया आराम करने के लिए, मैं बिस्तर पे लेटा, देखा कि ताक में अल्लाह का कुरान पड़ा है, ताक में अल्लाह का कुरान पड़ा है। मैंने सोचा उस जगह मैं कैसे आराम कर सकता हूं जहां अल्लाह का कुरान पड़ा हो, अल्लाह का कुरान तशरीफ फरमा हो, मैं वहां कैसे सो सकता हूं। कहता है मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने वहां से कुरान उठाया, दूसरे कमरे में रखा, आके लेटा, फिर दिल में ख्याल आया, और जब रब की रहमत होती है तो फिर दीन की समझ आती है। मेरे आका ने ये फरमाया, हदीस पाक है, फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। फरमाया जिससे, जिस बंदे से, जिस शख्स से मेरा रब भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ दे देता है। आका के दीवानों, सुल्तान महमूद गजनवी कहता है मेरे दिल में ख्याल आया तू कितना घटिया बंदा है, कितना बेकदरा है, कितना बेअदब है कि अपने आराम के लिए कुरान को उस मकाम से उठा के मकाम बदल दिया। कहता है मैं फिर गया दूसरे कमरे में, कुरान को उठाया और ला के वहीं रखा, खुद आराम के लिए अपनी जगह बदल ली। बस हुआ ये, कहता है कि बस मामला यही हुआ। अब जब उनका विशाल हो जाता है, किसी ने ख्वाब में देखा बड़ा फाखराना लिबास पहन के जन्नत में तैर रहा है, पूछा तेरे साथ क्या हुआ, कहा था तो गुनाहगार लेकिन कुरान का अदब काम आ गया। आका के दीवानों, कुरान की अजमत के क्या कहने। और आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुरान पढ़ के गुमराह कर रहे हैं। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। फरमाया इस कुरान से कई गुमराह होते हैं और कई हिदायत पाते हैं। कसीर लोग हिदायत पाते हैं, कसीर लोग गुमराह होते हैं। बारी ताला गुमराही और कुरान, क्या मतलब इसका? कहा कुरान से हिदायत डायरेक्ट नहीं मिल सकती, कुरान से हिदायत मालिक कैसे मिलेगी? फरमाया अगर कुरान से हिदायत लेनी है तो साहिब कुरान का दामन थामना होगा, दिल को इश्क़ मुस्तफा का गहवारा बनाना होगा। दिल इश्क़ मुस्तफा से जब जगमगा उठे फिर पढ़ेगा तो कुरान, तुझे हिदायत मिलेगी। आका के दीवानों, कुरान से हिदायत लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। कुरान से हिदायत वही लेता है जिसका कनेक्शन साहिब कुरान से होता। आका के दीवानों, आज लोगों ने इससे गुमराह करना शुरू किया। और गुमराही किनको मिलती है? जो मुनाफिकीन हैं,
जिनके दिल का कनेक्शन साहिबे कुरान से नहीं वो गुमराह होते हैं, और जिनका कनेक्शन साहिबे कुरान से है वो हिदायत लेते हैं। आका के दीवानों, बदअकीदा लोग, अल्लाह का गजब बरसे उन पे, उनका ये अकीदा है, और लोगों में, उम्मत मुसलमा में फसाद का प्रचार किया जा रहा है, फसाद को फैलाया जा रहा है, फसाद फिल अर्द के मुर्तकिब हो रहे हैं। उनका अकीदा क्या है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे तक का भी इल्म नहीं है। तवज्जो है, उन लोगों का ये ज़हन है कि हजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। और क्या कहते हैं कि शैतान और मलकुल मौत के इल्म से हजूर का इल्म कम है। उन लोगों ने, बदबख्तों ने अपनी कुतुब में लिखा और कहते हैं शैतान का और मलकुल मौत का इल्म कुरान से साबित है और हजूर का इल्म कुरान से साबित नहीं। और इतनी ज्यादती नहीं बल्कि इससे आगे भी बकवास करते हैं। कहते हैं कि जो हजूर के इल्म को साबित करे नऊज़ बिल्लाह वो मुशरिक है। अब देखो कि जिनके दिलों में अदावत, बुग़्ज़, कीना, हसद हो गुस्ताखी से, उनका सीना पत्थर हो, उनको मेरे मुस्तफा का इल्म कुरान में कैसे नजर आ सकता है? अरे कुरान में अगर इल्म देखना है तो पहले गुलामी मुस्तफा जो है वो इख्तियार करनी होगी, हजूर के इश्क का दामन थामना होगा। ये दामन किन लोगों ने थामा? जिन्हें सहाबा कहते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बारे में आता है नफल नमाज में मेरे आका के साथ खड़े हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर खड़े हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे हट जाते हैं। मसला शरीफी ये है कि एक मुक्तदी अगर हो तो वो इमाम के बराबर खड़ा हो, और आप नफल नमाज में खड़े हैं, थोड़ा पीछे हट जाते हैं, फिर आका अलैहिस्सलाम उनको पकड़ के अपने बराबर करते हैं, ये फिर पीछे हो जाते हैं। 2-3 मरतबा हालत नमाज में ऐसे किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को मुकम्मल फरमाया और फरमाया, ए अब्दुल्ला, तुझे मेरे बराबर किस चीज ने खड़े होने से रोका? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं, कहां मैं, कहां अल्लाह के रसूल, कहां मैं, कहां अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह के रसूल के बराबर कैसे खड़ा हो सकता हूं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, सरकार ने सीने से लगाया, दुआ दी। मेरे मुस्तफा की दुआ इधर होती है उधर कबूल हो जाती है। मेरे इमाम कहते हैं इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, या अल्लाह अब्दुल्ला को तफसीर और तवील का इल्म अता फरमा। वो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, फरमाया लौदाली इकाबु बाइरिन लवजदतुहु फी किताबिल्लाह। और समझ नहीं भी आई तो सुभान अल्लाह से कह लो। ये सहाबी रसूल का अकीदा है। आज हमारा अकीदा गढ़ा हुआ नहीं है, ये सहाबा और बुजुर्गों से पढ़ा हुआ अकीदा है। सहाबी रसूल का, आले रसूल का, आका के गुलाम का क्या अकीदा है, जिन्होंने फैज मेरे मुस्तफा से पाया है। फरमाते हैं, अगर मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम जाती है तो वो भी मैं अल्लाह के कुरान से तलाश करता हूं। अच्छा भाई, जिन्होंने ऊंट की रस्सी कुरान चो मिल जाए तो उन्होंने हजूर का इल्म नहीं मिले? कैसी बात है। और कुरान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, समझ ही उसे आता है जो साहिब कुरान से जिसका ताल्लुक होता। कुरान ले और साहिब कुरान को ना माने, ये कैसी बात है। आका के दीवानों, कुरान मजीद के अंदर
फरमाया वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन, कुरान ऐसी किताब है जिसमें हर चीज का वाज़े बयान मौजूद है। वाज़े बयान, कोई चीज ऐसी नहीं, कुल्लु सगीर व कबीर मुस्ततर, कोई छोटी और बड़ी चीज ऐसी नहीं जिसका तज़किरा कुरान में ना हो, कोई खुशकोतर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान में ना हो। अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया, हर चीज को इसने बयान कर दिया और फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। फरमाया रहमान जिसने कुरान नाजिल किया, अपने बंदे को कुरान सिखा दिया। अब जो कहता है कि कुरान से हुजूर का इल्म साबित नहीं, वो कुरान को नहीं मानता, उसका अकीदा कुरान पे नहीं, वो कुरान का इनकार करके भी काफिर है और हुजूर के इल्म का इनकार करके भी मरदूद है। आका के दीवानों, कुरान को कौन मानता है? जो ये मानता है कि कुरान में हर शय का बयान है और हर शय में इल्म मुस्तफा भी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह ने कुरान नाजिल किया और अपने महबूब को सब कुछ सिखा दिया। इसकी एक दलील कुरान मजीद से दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। फरमाया रब गैब का जानने वाला है, वो गैब पे किसी को मुत्तले नहीं करता। इतनी आयत सुना के आगे गोलमोल काम कर जाते, कहते हैं गैब का किसी को पता नहीं। आगे अल्लाह ने फरमाया इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, फरमाया रसूलों में से रब जिसे चुन ले, जिसे पसंद कर ले, उसे गैब का इल्म अता फरमाता है। ये कुरान है। आका के दीवानों, क़यामत तक के लिए इसका जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि ये रब का कलाम है। और हदीस से भी मैं हवाला देता चलूं, सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है वो माल के ढेर पे निगरान बना के मुंतखब कर दिया। फरमाया अबू हुरैरा ये माल की हिफाजत करो और इसकी निगरानी करो, देखभाल करो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं गल्ले के ढेर पे बैठा था और एक शख्स आता है रात के वक्त, वो गल्ले को भरने लगता है, मैं जाके उसे पकड़ लेता हूं और मैं कहता हूं तू कहां से आया है, कौन है? वो कहता है मैं मुहताज हूं, एयालदार हूं, बाल बच्चेदार हूं, मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा नहीं आऊंगा। जब सुबह होती है अबू हुरैरा हजूर की बारगाह में जाते हैं, मेरे आका देख के फरमाते हैं मा फ़अला सीरुक। फरमाया अबू हुरैरा तेरे रात वाले कैदी का क्या बना है? ओ इल्म हजूर दा समझ आ रहे है? फरमाया रात वाले तेरे कैदी का क्या बना? अर्ज की आका, वो आया, उसने माल भरा और मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा तुझे रसूल अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा, तू चोर है। कहने लगा मैं मुहताज हूं, बाल बच्चेदार हूं, मुझे छोड़ दो, वादा करता हूं आइंदा नहीं आऊंगा। मेरे आका फरमाते हैं अम्मा अन्नहु कद कज़बक व सयऊदु। आका फरमाते हैं वो झूठा है, तेरे साथ झूठ बोल के गया है, अनकरीब वो फिर आएगा। आका के दीवानों कहते हैं अगला दिन हुआ, मुझे यकीन था, सहाबी हो और यकीन इल्म मुस्तफा पे ना हो, ये कैसे हो सकता है? कहते हैं मुझे यकीन था, मेरे आका ने फरमाया है वो फिर आएगा। कहते हैं रात हुई, फिर आया, गल्ला बढ़ने लगा, मैंने उसको पकड़ा और कहा आज तुझे जरूर रसूल अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा, तू झूठ बोलता है, फिर आ गया है। बड़ा मिस्कीन बन के कहने लगा मैं मुहताज हूं, एयाल बाल बच्चेदार हूं, अब छोड़ दो आइंदा नहीं आऊंगा। फिर जब सुबह होती है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं, हजूर पूछते हैं मा फ़अला सीरुक, तेरे रात वाले कैदी का क्या बना? ऐ अबू हुरैरा बता। फिर अर्ज की मामला, आका उसने मुहताजी
और बाल बच्चों यालदारों की ये उसने शिकायत की, मुझे तरस आया, मैंने उसे छोड़ दिया। फरमाया वो फिर आएगा, वो झूठा है। अब रात होती है, कहते हैं फिर गल्ला भरने आया और आके उसने गल्ला भरा। कहते हैं जब जाने लगा मैंने पकड़ा कि आज तुझे जरूर रसूल अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा। कहते हैं उसने बड़ी मिन्नतें की, मोहताजी की, बाल बच्चेदार होने की शिकायत की और कहा तुझे एक वसीफा बताता हूं, जो रात के वक्त आयतल कुर्सी पढ़ लेगा, एक फरिश्ता उसकी हिफाजत के लिए सारी रात मुकर्रर रहेगा और शैतान उसके करीब नहीं आ सकेगा। जब ये वो बात की तो कहते हैं मैंने उसको छोड़ दिया। सुबह हुई, फासबहतु फक़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं सुबह हुई तो मैं हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया तो हजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया मा फ़ारा सीरुक, तेरे रात वाले कैदी का क्या बना? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहते हैं मैंने ये अर्ज किया कि या रसूलल्लाह वो ये वजीफा बता के गया है। मेरे आका क्या फरमाते हैं? फरमाया अम्मा अन्नहु कद सदका व हुवा कज़्ज़ाब, फरमाया वो कह तो सच गया है लेकिन खुद झूठा है। ये है इल्मे मुस्तफा। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा से पूछा, ए अबू हुरैरा बता जानता है वो आने वाला कौन था? अर्ज की आका मैं नहीं जानता वो कौन था। इल्मे मुस्तफा पे एतराज करने वालों होश के नाखून लो। सहाबी जिनके बारे में कहे मैं नहीं जानता, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लाक शैतान। फरमाया अबू हुरैरा सुन, वो कोई शख्स नहीं था, वो कोई बंदा नहीं था, वो कोई इंसान नहीं था, वो आने वाला चोर शैतान था। आका के दीवानों पता चला इस हदीस से दो मसले मालूम हुए। एक ये कि सरकार हर चीज के बारे में जानते हैं, इसलिए तो फरमा रहे हैं कि कल फिर आएगा, कल फिर आएगा, कल फिर आएगा, वो शैतान है। इससे इल्मे मुस्तफा साबित हुआ। और ये भी पता चला कि हजूर ये भी जानते हैं जो बात कह के गया है वो सच्ची है, खुद झूठा है। जो आयतल कुर्सी पढ़े बिस्तर पे लेटने से पहले सारी रात एक फरिश्ता उसकी हिफाजत में मुकर्रर हो जाता है, उसकी हिफाजत होती है शैतान से भी, चोर से भी। लिहाजा हमें कुरान का दामन थामना होगा, अपने अकीदे को भी जिला बख्शनी होगी और अमल को भी दुरुस्त करना होगा। आका के दीवानों आज हम ये रमजानुल मुबारक की मुकद्दस सातों में ये तहिया करें कि हमारे घरों में जितने कुरान हैं हम सब मिलके कुरान की तिलावत करेंगे। क्या करते हैं? सब कुरान की तिलावत करेंगे। अभी हाथ खड़े नहीं हुए। जो कुरान के दामन को मजबूती से थामे और ये अहद करे रब के घर में बैठ के जहां कुरान पढ़ा जाए वहां अल्लाह की रहमतें होती हैं। इंशाअल्लाह हम आज से तैयार करते हैं, जो सुस्ती हो गई, जो गफलत हो गई वो एक तरफ, लेकिन आज से कुरान की तिलावत जरूर करेंगे। आका के दीवानों एक जिस्म की गज़ा है, एक रूह की गज़ा है। जिस्म की गज़ा खाना पीना है और रूह की गज़ा तिलावत कुरान है। अल्लाह का जिक्र है, जिक्र फिक्र है, तस्बीह तहलील है। तो जैसे हम जिस्म को गज़ा न दे कमज़ोर हो जाता है, ऐसे रूह को गज़ा न दी जाए रूह कमज़ोर होती है। तो आज से क्या सब तैयार करते हैं कि इंशाअल्लाह कोई और काम हो या ना हो कुरान की तिलावत जरूर होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।